بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اسلام اور فیمنزم کے عنوان سے جو کورس چل رہا ہے، ابھی ہم کافی مزید ٹاپک پہ ڈسکسنگ کے بعد ایک ریکارڈ کور ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ کافی کچھ چیزیں جو ہے وہ کور ہو چکی ہیں۔ دوسرا ریکارڈ سورہ نساء کا ٹوٹلی جو ہے وہ میراث سے متعلق ہے۔ بیسیکلی ہم اس لیکچر میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام کا جو انہیریٹنس کا سسٹم ہے اور اس کا جو انہیریٹنس لا ہے وہ کیا ہے، وہ کس سیاق و سباق میں نازل ہوا ہے، یعنی جس وقت یہ نازل ہوا اس وقت سوسائٹی کس قسم کی تھی، اور اسی طرح اس کو تھوڑا کمپیریٹیولی دیکھیں گے کہ عیسائیت، اسی طرح یہودیت اور رومی قانون، جرمن اور کرنٹلی جو یورپین قانون ہے انہیریٹنس کے حوالے سے وہ کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ اسلام نے جو انہیریٹنس کا لا بتایا ہے، اسپیشلی للذکر مثل حظ الانثیین، اس کو لے کے فیمنزم کے کیا اشکالات ہیں اور ایکچوئل جو اسلام کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ کیا ہے، اور یہ اعتراض کیوں پیدا ہوا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کو دیکھ کے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا حکمت ہے، اور دور حاضر میں اس کو کیسے فیمنزم کے اشکالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف، انشاءاللہ کافی کچھ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے اور طلبا کے کوشچن کی جو ہے وہ آنسر دیے جائیں گے۔ یہاں تک جو ہم نے پچھلے 2-3 جو لیکچر ہوئے ہیں وراثت سے متعلق، اس میں ہم نے سورہ نساء کا جو ڈیٹیل ہے وراثت سے متعلق وہ ہم نے پڑھی ہے، مختلف مسائل دیکھ لی ہیں، لیکن اب اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کس پس منظر میں قرآن نے یہ آیات نازل کی ہیں اور کیسے یہ قانون بنایا ہے، تو اس کو تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس دنیا میں اور مدینہ میں جب ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جو ہے وہ وراثت کا جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوتی تھی۔ تو اس میں جو پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے جو عربوں کا جو طرز زندگی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ بیسیکلی جو ہے وہ کیا تھا، بیسیکلی نہ کوئی ظاہر کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی اقتصادی، نہ کوئی معاشی، بس ہر ایک نے اپنی اپنی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اصول بنائے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ سب سے پہلا اصول انہوں نے یہ رکھا ہوا تھا، جو جنگ میں جاتے ہیں جو لوگ، یا یہ ہے کہ جو لڑائیاں وغیرہ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ بظاہر جو ہے وہ طاقتور ہیں، تو اب ظاہر سب کچھ وہ برداشت کرتے ہیں، تو اس لیے لہٰذا جو مرد ہے، رجولیت مطلب رجل سے ہے مرد، یہ مرد ہے اور جو طاقت ہے وہی بات ہے جس کو آج کل بھی جو ہے وہ فیمنزم بھی اور باقی بھی جو باقی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی یہاں عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو وہ یہی ہے کہ پیداسری سسٹم تھا اور جو ہے وہ نظام ایسا تھا کہ ہاں جی مرد بھی سب کچھ ہے۔ تو یہ اس قسم کا جو ہے وہ پس منظر تھا کہ اس قسم کے پس منظر میں، اس قسم کے معاشرے میں، اس قسم کے جو سوسائٹی تھی اس میں جو ہے وہ اسلام نے پھر یہ قانون بنایا ہے۔ تو اب پھر وہ اس زمانے میں وراثت کے قانون کیا تھے وہ دیکھیں جی، وہ بنیاد کیا تھی، بیس کیا تھی اس کی۔ زمانے جمہوریت میں وراثت کے قوانین وراثت کی بنیاد 2 طریقوں پر تھی۔ نمبر 1 نسب خونی رشتہ، نمبر 2 سبب معاہدہ یا تعلق۔ سبب کی بنیاد پر وراثت، نسب کی بنیاد پر وراثت، صرف مرد وراثت کے حقدار تھے، عورتیں اور چھوٹے بچے وراثت سے محروم رہتے تھے کیونکہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ عورت کو والد، شوہر اور اولاد کی میراث میں کوئی حصہ نہ ملتا۔ سبب کی بنیاد پر وراثت، حلف اور معاہدہ۔ زمانۂ جاہلیت میں بعض لوگ معاہدے کے ذریعے ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے۔ معاہدے کی مثال، اچھا آپ سنیے، آپ ایسے کریں، آپ مائک آف کر دیں، ہم کسی اور سے کر دیتے ہیں پڑھ لیں، پھر آپ جو پوتی پڑھنی آپ بھی پڑھنا۔ اچھا کوئی اور جو جس کی ایزی ہو وہ خود پڑھے۔ سب میں پڑھ لیتی ہوں۔ جی جی۔ وہ عہد کی مثال دمی
دمك وحد حدمك ترثني. اچھا یہ عربی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں. دمی دمک و حدمی حدمک ترسنی و ارسک تطلب بی و اطلب بک. یہ ایک عربی جو ہے وہ عبارت ہے. اب اس کی میں اگر جب آپ پڑھ لیں پھر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں یہ کیا مطلب ہے. جی اس کے تحت ایک شخص دوسرے کی میراث کے چھٹے حصے کا حقدار ہوتا ہے. جی اچھا جی. اب جو ہے وہ یہ سبب کی بنیاد پہ وراثت کے جو پہلا ہے سبب جو جس کی وجہ سے وراثت ملکی کی پیچھے آپ نے پڑھ لیا تو ریزن تھی نسب. تو نسب میں جو ہے وہ صرف بیٹا ہی ہے یا یہ کہ مرد ہے وہی آتے تھے، باقی عورت نہیں تھی. اور سبب کی بنیاد پہ جو وراثت ملتی ہے اس میں جو پہلا ہے وہ ہے کوئی آپس میں کوئی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے یا ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہوتا تھا میراث ملتی تھی. مثال کے طور پہ یہاں ایک عربی عبارت جو ذکر کی ہے وہ اس لیے کہ یعنی اس طرح کے جملے بول کے ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا. تو وہ کیسے کہ مثال کے طور پہ اس زمانے میں تو دیکھ لیں کہ اب کیونکہ اسلام نیا نیا آیا ہے اور اس قسم کی کچھ ڈیولپ سوسائٹیز تو نہیں تھی اور نہ ہی کوئی لا بنا ہوا تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے. اب جب نیا نیا مسلمان ہوا ہے تو اب ظاہر ہے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا ہے تو اس کا پورا خاندان یا کم سے کم اس کے اپنے گھر والے جو ہے وہ مسلمان ہو جائے. تو اب ظاہر ہے جب وہ مسلمان ہوا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی تو اس کو پروٹیکشن چاہیے، کوئی نہ کوئی تو سیف زون چاہیے اس میں کہ آگے اگر مسلم معاشرے میں سروائیو کرنا ہے تو کیسے وہ چلے گا. اگر اس سے کسی سے لون لینا ہے، کسی سے قرضہ لینا ہے یا مر جائے گا تو اس کی جو ترکہ وغیرہ اس کو کیا بنے گا. تو وہ ایسا ہوتا تھا پھر ایک جو نیا مسلمان ہے وہ کسی مسلمان سے ایگریمنٹ کر لیتا تھا کہ بھئی مجھے تو کوئی یہاں جاننے والا نہیں ہے، میرا تو کوئی یہاں اپنا نہیں ہے، تو اب اگر میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تمہارے جو ہے وہ سوسائٹی میں آ چکا ہوں تو ایسا کرتا ہوں میرا تمہارے ساتھ ایگریمنٹ ہے، اگر میں نے جو ہے وہ دنیا میں اگر کچھ جو ہے وہ اونچ نیچ ہوگی مجھ سے، یعنی کسی کا اگر میں قتل کر دیا یا کوئی اور کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، دیت دینی پڑ گئی، یا یہ کہ کسی سے قرضہ لیا وہ واپس نہیں کر سکا، یا اس طرح مطلب جو بھی دوسرے لوگوں کے حقوق میرے اوپر جو ہے وہ لازم ہوں گے، اگر میں نہیں ادا کر پایا تو تم ادا کر دینا، اور مرنے کے بعد جو میری میراث ہوگی وہ اس میں تم مستحق ہو جاؤ. ٹھیک. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا میراث کا اور زندگی کے دوران جو بھی انہوں نے کرنا ہے. آگے سمجھ کہ کس قسم کا ایگریمنٹ ہوتا تھا. جی سر. جی تو یہ اس کو سوری کسی نے بولا کچھ. نہیں سر آپ نے پوچھا نا سمجھ آنے کا. اچھا جی سمجھ. اچھا تو اس کو جو ہے وہ عربک ٹرم میں جو ہے وہ مول الموالات کہتے ہیں. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ مطلب جس کو اس ایگریمنٹ کا نام ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اس قسم کا ایگریمنٹ ہوتا تھا تو یہ بھی ایک قسم کی میراث کا جو ہے وہ یہ سمجھنے کے حصہ تھا کہ ایسے لوگوں کو بھی میراث ملتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا جی ایک سبب تو یہ ہو گیا وراثت کا. اور کیا تھا جی. کچھ بننا وہ بولا بیٹا وہ والا بیٹا حقیقی وارث سمجھا جاتا تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا. یہ تو ہو گیا جی اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں اسلام آیا ہے اور زمانہ جاہلیت میں کیا ہو رہا تھا. اب باقی جو ادیان ہیں جو باقی جو ہیں یار اسلام تو وسلم کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچا وہ تو لاسٹ میں ہے نا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جوش میں کیا ہے یا کرسچینٹی میں کیا ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. جی تصور میراث اور دیگر ادیان. یہودیت میں وراثت قانون. یہودیت میں سب کچھ بیٹا ہی ہے، اس کی موجودگی میں کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ اولاد نہ بیوہ. تاہم بچی اگر نابالغ ہو تو 12 سال تک باپ کے ترکے سے خرچہ لے سکتی ہے. دلیل یہ کہ بیٹا چاہے جائز ہو یا ناجائز ہر حال میں اکیلا وارث ہے. اسی طرح بڑا بیٹا دگنا وارث قرار پاتا ہے. بیٹے اور پوتے کی عدم موجودگی میں بیٹیاں وارث ہوتی ہیں. اگر اولاد میں کوئی نہ ہو یعنی بیٹے پوتے نواسا نواسی کوئی بھی نہ ہو تو باپ وارث ہوتا ہے. اگر والد نہ ہو تو دادا، اور وہ بھی نہ ہو تو میت کا بھائی، وہ بھی نہ ہی تو چچا وغیرہ. اگر عورت مر جائے تو اولاد نرینہ کی صورت میں اسے کسی قسم کی وصیت کا کوئی حق نہیں ہوتا. اگر وارث بیٹیاں ہوں تو جسے چاہے وصیت کر سکتی ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو شوہر سارا مال لے لیتا ہے. نصرانیت میں وراثت قانون. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، اس لیے نصرانیت کا قانون میراث بھی وہی ہے جو یہودیت کا ہے.
ताहम अब इसमें काफी तब्दीली कर दी गई है, जिसकी वजह से आजकल ईसाइयत के कानून विरासत पर यूनानी और रोमी कानून की छाप लग चुकी है। अच्छा रोमी कानून में अच्छा, एक मिनट। अच्छा जी, ये समझ लें कि नसरानी को ये अपने से पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो भेजा गया है बेसिकली बनी इसराइल की तरफ। यहाँ कोई कंपैरेटिव का स्टूडेंट है, कंपैरेटिव रिलीजन का? सर वैसे कंपैरेटिव की बात करी हुई है। अच्छा अच्छा जी, तो बेसिकली जो है वो जो यहूदियत है वही यानी जो तौरात है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई है, लॉ के एतबार से वही असल है। चाहे वो ज़बूर ले लें, चाहे इंजील ले लें, चाहे बाकी जो आई है बनी इसराइल में जो अंबिया आए हैं, लॉ किसी में नहीं है, ठीक है। लॉ सिर्फ और सिर्फ तौरात में है, तो फॉलो उसी को किया जाता है। तो अगर क्रिश्चियनिटी भी जो है वो उसकी बात भी लॉ नहीं है, वो सच जो है वो कुछ जो है वो अमेंडमेंट्स हुई हैं छोटी मोटी, और या ये है कि सिर्फ जो है वो इबादत का जो है वो जिक्र है, अल्लाह ताला की हम्द व सना का, या इस तरह कुछ चीज़ें हैं और तारीफ वगैरह और ये है। तो इसीलिए क्योंकि अब लॉ नहीं है अलग से क्रिश्चियनिटी में, इसलिए वो उसी को फॉलो करते थे जो यहूदियत में था। लेकिन ये उस ज़माने की बात है। अब जो है वो मगरब में क्या हो रहा है या बाकी ममालिक में क्या हो रहा है वो आगे लिखी हुई है, वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ फिलहाल ये देख लें कि अब जो है वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब अच्छा खासा चरबा बना हुआ है, जो है वो कुछ जो है वो यहूदियत से लिया है, कुछ जो है वो यूनानी जो है वो मजहब से लिया है, कोई रोमी से लिया है, कोई कहाँ से लिया, कोई कहाँ से लिया। अच्छा, तो रोमी कानून क्या है? रोमी कानूनी विरासत इब्तिदा में ये था कि अगर कोई शख्स अपना माल वसीयत करता है तो सारा माल मूसा लाह को मिल जाता था। जी, मूसा लहू को मिल जाता था। मूसा लहू क्या होता है, कोई बता सकते हैं? वसीयत की जाती है। हाँ जी, जिसके हक में वसीयत की जाती है। जी, मूसा लहू मतलब बेसिकली वो शख्स है जिसके लिए वसीयत की जा रही है। जी, ताहम 543 में बादशाह गस्तियानोनस ने कानूनी विरासत में कुछ तब्दीलियां की और विरासत की बुनियाद कराबत करार दी। लिहाजा कानूनी विरासत के मुख्तलिफ तबकात हैं। पहला तबका फरू यानी बेटा बेटी पोता पोती और नवासा नवासी का है। उनकी मौजूदगी में कोई और वारिस नहीं है। सबको विरासत जिक्र ध्यान में जो दूसरा तबका असूल है वो है यानी बाप दादा और भाई। यानी ये जो रोम का कानून है उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसकी स्लाइड भी चल रही है, कोई अलग नहीं है, वही रोमी कानून। जी, इसमें दूसरा तबका, पहला तबका था ना फरू का, बेटा बेटी जो है वो नवासा नवासी, ये तो दूसरा तबका असूल का है यानी बाप दादा और भाई वगैरह। पहले तबके की अदम मौजूदगी में ये वारिस होंगे। जी, अब ये फर्क साथ साथ समझते जाएं, जो आगे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ये देखते हैं कि पहले जो है वो औलाद पहले है, फिर वालिदैन है और बाकी भाई वगैरह। जी, अहम बात यह है कि दादा के साथ हकीकी भाई हो तो महरूम नहीं होता बल्कि बराबर का हकदार होता है। इसी तरह पोता चचा के साथ बराबर का हकदार होता है। जी, असूल और फरू और हकीकी भाई ना हो तो बाप शरीक या माशरीक भाई वारिस होगा। अगर ये भी ना हो तो दीगर रिश्तेदारों में अल अकरब के असूल के मुताबिक मिरास तकसीम। अच्छा, क्या मतलब है अल अकरब फल अकरब का? सर नजदीकी रिश्तेदार। हाँ जी, जो सबसे ज्यादा करीब है उसको मिलेगा। जी, इस कानून में मियां बीवी के माबैन मिरास जारी नहीं होती क्योंकि इनके माबैन कराबत का कोई रिश्ता नहीं। जी, ये समझ आया कि जो इटली जो रूमी कानून है, रूमी कानून में बाकी जो रिश्तेदार हैं जिनमें यानी ब्लड रिलेशन है, चाहे वो उसूल है चाहे वो फुरू है, उसमें तो मिरास जारी होती है। लेकिन जो मियाँ बीवी हैं उनके आपस में जो है मिरास जारी नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इनके दरमियान कोई कराबत का कोई रिश्ता नहीं है ना। मगरबी ममालिक का कानूनी विरासत यूनानी और रूमी कानूनी विरासत का चरबा है। जर्मन का कानून हो या फ्रांस का, रूस का हो या अमेरिका का, हर कानून में यूनानी और रूमी कानून ही की झलक नजर आती है। जी, जर्मन कानून में विरासत की बुनियाद कराबत और ज़ौजियत है। फरा की मौजूदगी में मियाँ बीवी चौथाई हिस्से के हकदार हैं। फरा की अदम मौजूदगी में आधे हिस्से, और अगर असूल और फरा में कोई भी ना हो तो शोहर पूरे तरके का हकदार है। जी, यहाँ पे जर्मन का जो कानून है उसमें बेसिकली
अगर इसको इस्लाम के साथ रिलेट करें तो ये दोनों चीज़ें इस्लाम में भी हैं कि इस्लाम भी कराबत को सामने रख के बनाता है उसूल विरासत के, और ज़ौजियत को भी वो मद्देनज़र रखता है। तो अलबत्ता ये है कि फ़र्क की मौजूदगी में, यानी फ़र्क की मौजूदगी मतलब औलाद जो है, औलाद की मौजूदगी में हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ औलाद हो तो चाहे वो हामिद है चाहे वो बीवी है, दोनों को जो है वो चुकाई हिस्सा मिलता है। हमारे यहाँ फ़र्क है, वो आप कल जो हम डिस्कस कर चुके हैं आयत में। याद है किसी को? जी मरियम आप बताएं क्या है, तो देख लेना प्रीवियस नॉलेज भी है या बस क्लास हुई वो ख़त्म होगी। अगर औलाद हो तो बीवी को कितना हिस्सा मिलता है इस्लाम में? सर 118। और ना हो तो सर 14। और खामिन को सर हाफ। हाफ कब? सर जब औलाद ना हो। और हो तो सर 1/4 है आई थिंक। जी जी चौथाई हिस्सा। तो यहाँ ये समझ लें कि हमारे यहाँ जो है वो फर्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये है कि बस हर हाल में दोनों को अगर जो है वो औलाद है तो चौथाई मिलेगा, नहीं है तो फिर आधा हिस्सा मिलेगा, चाहे वो खामिन है चाहे वो बीवी है। जी आगे। रूसी कानून में 3 तरह के लोग वारिस हैं: औलाद, मियां बीवी, नंबर 2 वालिदैन और मुतबन्ना, और नंबर 3 पे है भाई बहन। जी अंग्रेजी कानून में औलाद नरीना वारिस है, ये ना हो तो फिर बेटी वारिस होती है। जी की वरासत। नंबर 1, औरतों और बच्चों को वरासत में हक दिया। सूरह निसा की आयात मिरास के जरिए औरतों और बच्चों को बाकायदा वरासत में शामिल किया गया। वालिद, शोहर, जी बेटे ये और पहली इस्लाहात हुई है जो आपने ज़माना जाहिलियत में पहले पीछे पढ़ा कि औरतों और बच्चों को हक बिल्कुल नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ तो रजूलियत और जो था जो जंग में जाते हैं वो, ये तो ज़ाहिर है औरतें और बच्चे तो जंग में नहीं जाते, जब नहीं जाते तो फिर ज़ाहिर है मिरास में कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन इस्लाम ने बुनियाद ये नहीं करार दी कि जो जंग में जाते हैं उनको मिलेगा, बल्कि इनको भी शामिल किया। जी वालिद, शोहर, बेटे और दीगर रिश्तेदारों की मिरास में औरत का मुकर्ररा हिस्सा तय किया गया। जी नंबर 2, वरासत को ताकत और जंगी सलाहियत की बुनियाद पर महदूद करने का खात्मा। जी ये हम उसी को डिस्कस कर रहे ज़माने हैं। जाहिलियत में जंग में हिस्सा न लेने वालों औरतों और बच्चों को महरूम रखा जाता था। इस्लाम ने ताकत और रजूलियत की बुनियाद पर वरासत देने की बजाय अदल और इंसाफ को बुनियाद बनाया। यानी जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसमें आगे फिर जिम्मेदारियां अदा करनी है, तो उस हिसाब से जो है वो इस्लाम ने फिर हर एक को मिरास में हिस्सा दिया। जी नंबर 3, करीबी रिश्तेदारों को वरासत में अव्वलियत दी। सूरत अनफाल में वजाहत की गई कि करीबी खूनी रिश्तेदार ही वरासत के ज्यादा हकदार हैं। कोई यहाँ पे हाफिज है? शकील आप हाफिज हो? सर मैं अच्छा बताएं फिर सूरह अनफाल में कहाँ है? वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़ फ़ी किताबिल्लाह मिनल मुमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला ये तो आपने औलियाइकुम। ये तो सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ ली आपने। हाँ जी सर। अच्छा बिल्कुल ना, सूरह अनफाल के एंड पे वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़, बिल्कुल आखिर में है, बिल्कुल जो आखिरी आयत है वो जी पढ़े, सर है। ठीक है। वल्लज़ीन आमनू मिन बअद वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम वउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़ फ़ी किताबिल्लाह। जी इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। जी बिल्कुल ये वाली आयत जो है, वैसे वो जो सूरह अहज़ाब की आपने पढ़ी है वो भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैंने सिर्फ वो रमजान चल रहा है ना तो हिफज को थोड़ा सा इम्तिहान लेने के मैंने कहा कि तैयारी कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे। चलें जी, एक ये जो है वो ये है कि सूरह अनफाल में कुरान ने बता दिया है, और सूरह अहज़ाब की भी मैंने आयत पढ़ ली, और भी जो है वो दो जगह और भी इसका तज़किरा है कि बेसिकली कुरान ने जो बेस बनाई है वो यही है, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लड रिलेशन हो और अलकरब फलकरब वाला कानून है कि जो जितना करीबी रिश्तेदार होगा उसको जो है मिरास में मिलेगा। जी मुआहिदों और हलफ के जरिए गैर मुतल्लका अफराद को वारिस बनाने के तरीके को खत्म कर दिया गया। जी ये जो मॉडल मवालात जो हम पहले पढ़ चुके हैं और इस तरह के जो एग्रीमेंट होते थे, तो ऐसा वैसा ज़माना जाहिलियत में होता था, लेकिन इस्लाम ने फिर उसको ना तो जो है वो कोई अहमियत दी है और ना ही कोई ये कोई वजह हो सकती है, क्योंकि आजकल ज़ाहिर है इस्लाम में क़यामत तक रहना है, तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबों में जो है वो मुसलमान हैं, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये हिस्सा अब ख़त्म हो चुका है। जी इस्लामी इस्लाहात बराए हक़ वरासत। नंबर 4, मुतबन्ना मुंह बोले बेटे की वरासत का खात्मा।
ज़माने जाहिलियत में मुंह बोला बेटा हकीकी वारिस समझा जाता था। सूरतुल अहज़ाब में ऐलान किया गया कि मुतबन्ना को हकीकी बेटा नहीं समझा जाएगा और ना ही विरासत में हिस्सा लेगा। अच्छा, नंबर 5, मीरास की तफसीली तकसीम का तयन। इस्लाम ने विरासत के वाज़ेह क़वानीन मुतय्यन किए ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। विरासत में वालिदैन, औलाद, बीवी, शौहर, बहन भाई और दीगर करीबी रिश्तेदारों के मुकर्ररा हिस्से तय कर दिए गए। नंबर 6, विरासत में अदल व मुसावात का क़याम। जाहिली विरासती निज़ाम में ताकतवर अफराद विरासत पर काबिज हो जाते थे। इस्लामी क़वानीन ने हर हकदार को इसका मुकर्ररा हिस्सा देने को लाज़मी करार दिया। जी, यहाँ तक आपने जो पढ़ लिया कि हम इस्लाम में जो है वो कहाँ का ज़रूरत थी इस्लाहात की, और तो जो है वो इस्लाम वहाँ बीच में उसने बाकायदा जो है वो दखल अंदाजी की है और बताया है कि भाई सोसाइटी के लिए ये गलत है और ये ठीक है। अब तो इस्लाम ने जो है वो बेस क्या थी, तो किस चीज़ को बेस बना के लॉ बनाया है और फिर इस्लाहात क्या की है, वो तो सब कुछ समझ लिया। अब जो है वो हम आ जाते हैं इस पे जो हम पहले कुरानी आयात के ज़ेल में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इसको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हाँ जी इस्लाम में जो है वो किस किस्म के लोग जो है वो वारिस होते हैं और उनकी डिटेल क्या है। जी, इस्लाम का कानून मीरास। किसी भी मैयत के तरफ से 3 तरह के लोग मुतालिक होते हैं। धावे फुरूज वो रज़ा है जिनकी हिस्सा शरीयत इस्लामी ने खुद मुकर्रर की है और ये कुल 12 रिश्तेदार है। 12 रिश्ते हैं जिनमें 4 मर्द और 8 औरतें हैं। 4 मर्द वालिद, दादा, माँ शरीफ, भाई, शोहर। जी, ये 4 मर्द हैं और जो है वो ज़वील फुरूज में यानी इन चारों के कुरान ने जो है वो जिक्र किया है हिस्सा, वो वालिद, दादा, माँ शरीफ, भाई और शोहर। ठीक है, तो ये हम चारों का जो है पढ़ चुके हैं, वालिद का भी और दादा के भी और माँ शरीफ भाई का भी और शोहर का भी। तो ये हो गई 4 मर्द और 8 औरतें कौन सी हैं? सर माँ शरीफ भाई सिर्फ वो कराला में हमने पढ़ा था ना जी सर जी, वहाँ पे। जी, अच्छा 8 औरतें। नंबर 1 बीवी, बेटी, पोती, हकीकी बहन, बाप शरीफ बहन, माँ शरीफ बहन, माँ, जद्दा। जी, ये होगी 8 औरतें। तो अब जो है वो अगर लेटर नोट में इसको ले लिया जाए तो ख़वातीन को क्यों मुताद होता है कि हाँ जी सारा कुछ तो मर्द ले गए। तो आप खुद देख लें कि हमारे जो है वो 4 रिश्ते सिर्फ हैं, आपके 8 हैं। देख लें कि आपको कुरान ने इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी है या हमें ज़्यादा दी है? ख़वातीन को ज़्यादा दी है। हाँ, तो फिर आपको खुश होना चाहिए ना। आपको अल्लाह ने प्रोसेस दी है, आपको अल्लाह ने तरजीह दी है, तो आप उससे खुश हो जाएं। तो बजाय इसके कि ये कहें कि जी हाँ जी मर्द सब कुछ ले गए। वैसे जस्ट ये लाइटर नोट है, ये कोई किसी को ना तो कुछ कहना है माइंड नहीं कीजिएगा, जस्ट लाइटर नोट में कह रहा हूँ मैं। जी, बहन और माँ एक मिनट, शायद कोई बोल रहा है जी, कोई बोला है शायद जी। जद्दा क्या है? नानी दादी। ये जद्दा है, जद्दा मतलब जो है वो अरबी में जद कहते हैं दादा को, जद्दा कहते हैं दादी को। तो उसमें फिर नानी भी आती है, दादी भी आती है, लेकिन वो फिर अगर तफसील है कि आम तौर पे नानी वारिस नहीं बनती, उसको जद्दा फासला में शुमार होता है। लेकिन आप सिर्फ ये समझ लें कि जद्दा से मुराद दादी है, बस ये समझ लें। और सर ये बाप शरीफ बहन और माँ शरीफ बहन ये भी कलाला में ही है? नहीं, ये बाप शरीफ बहन और ये कलाला ना भी हो तो फिर भी है। वो पहली आयत में पढ़ा था ना, माँ को जो हिस्सा, माँ के हिस्से बयान हो रहे थे, उसमें जो है वो इखवा का वर्ड यूज हो रहा, वहाँ मैंने बताया था कि यहाँ पे बाप शरीफ, माँ शरीफ, बहन, माँ, बाप शरीफ सब बहन भाई हैं। ठीक है जी। अच्छा, ज़वील फुरूज खत्म हो गया। अब ज़वील फुरूज के हवाले से अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें ताकि फिर आगे चले ना। सर मैंने पूछना था कि जैसे पोती है, पोते का तो मिरास में हिस्सा नहीं होता, तो ये पोती इससे एक्सेप्शनल केस है? नहीं, यहाँ सिर्फ जस्ट ये बताया जा रहा है कि वारिस कौन कौन से हैं। अब कब वो वारिस बनेंगे ये यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा। यहाँ सिर्फ ये डिस्कस हो रहा है कि कौन कौन वारिस है और इस्लाम में और कौन कौन नहीं है। लेकिन उसकी जो तकसीम का तरीक़ेकार है वो तो अलकरब फलकरब वाला है ना। अलकरब फलकरब वाला है, मतलब ये कि बेटा होगा तो पोते को कुछ नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा। तो ज़ाहिर है जब पोते को नहीं मिलेगा तो पोती को तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ये जस्ट सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसको इस्लाम ने शुमार किया है ज़वील फुरूज में, इसका हिस्सा बयान किया है। लेकिन अब उस तकसीम में जब ज़ाहिर हर मसला उसकी नौइयत अलग होती है, तो अब मिसाल के तौर पर वरासा में अगर
बेटा भी है और पोती भी है और पोता भी है, तो ज़ाहिर है फिर वारिस बेटा बनेगा, पोता और पोती तो नहीं बनेंगे। तो ये मतलब नहीं है कि ये 12 हैं तो अब 12 को हर हाल में शुरू में देने ही देने। उसकी फिर आगे जी तो बेटा नहीं है तो फिर भी पोता और पोती को नहीं मिलेगा, बाकी जो उसके चचा और ताए हैं मैयत के तो वो बेटे हैं ना, तो उनको मिलेगा, इसको नहीं पोते। जी ये 8 औरतें जो हैं इनमें तो पोती लिखी है। इनमें पोती लिखी है, तो वही उस सूरत में है ना कि बेटी है, मिसाल के तौर पर एक बेटी है और एक पोती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक शख्स है मरा है और उसके पीछे जो वरसा है उसमें बेटा नहीं है लेकिन बेटी है और पोती है, तो फिर तो मिलेगा ना। सवा से मुराद वो वरसा हैं जिनका कुरान में कोई मुकर्रर हिस्सा जिक्र नहीं हुआ, ताहम ये ज़वील फुरूज की मौजूदगी में कुल तरका का बकिया हिस्सा और अदम मौजूदगी में सारे तरका के मुस्तहिक होते हैं। जी हम कल बता चुके हैं 2-3 दिन से क्या सबाक बेसिकली क्या होते हैं। जी अब ये बेसिकली हैं कौन कौन, तो वो थोड़ा देख लें। जी वो देखते हैं। जी फेमिनिस्ट माहिरीन का कहना यह है कि विरासत में 2 औरतों के बराबर एक मर्द का उसूल गलती से अमूमी तसव्वुर बना लिया गया है। ये तनासब जायदाद की तकसीम का वाहिद तरीका नहीं है, बल्कि दीगर मुमकिना मुतनासिब तरीके भी मौजूद हैं। ये मसावात मर्द व जन के उसूल पर जोर देते हुए तमाम रिश्तेदारों के दरमियान मसावी तकसीम की हिमायत करते हैं। अच्छा यहाँ पे बेसिकली उनका जो कहना है वो ये है कि जैसे पहले भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि बेस उनकी यही है कि हर जगह के मसावात मर्द व जन, इक्वालिटी जो है वो हर जगह उनको चाहिए। तो हम बार बार कह चुके हैं कि मसावात का जो उसूल नहीं है शरीयत के यहाँ, शरीयत के यहाँ जो है जो फितरत है उसी फितरी उसूलों को सामने रख के उसूल बनाए गए। तो अब क्योंकि मसावात मर्द व जन का नारा है, तो अब वो कहते हैं जब मसावात है तो मर्द और औरत तो दोनों बराबर ही हैं। जब बराबर हैं तो फिर ये आपने जो ज़करी मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कानून है, तो इसको आपने एक उमूमी कानून क्यों बनाया हुआ है? आपने जो है वो कंडीशंस को देखें और उस हाल को देखें। अगर तो ज़रूरत है कि मर्द को ज़्यादा दिया जाए तो दें, और अगर जो है वो नहीं है तो फिर ऐसा करना कि हमेशा जो है वो हर हाल में औरत को जो है वो आधा मिले और मर्द को पूरा, यही है कि उसको डबल और उसको सिंगल। तो ये बिल्कुल भी जो है वो मसावात के उसूल के खिलाफ है, क्योंकि वो बेस उनकी यही है मसावात वाली, इसलिए ये उनका इश्काल है। नजरिया की वजाहत, इनका कहना है कि विरासत की तकसीम में अमूमी असूल नहीं होना चाहिए, बल्कि हालात के मुताबिक मसावी तकसीम की जानी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर औरत कमाने की जिम्मेदार हो या वालिद के इंतकाल के बाद वालिदा की देखभाल का फरीजा बेटी पर हो, उसे मर्द के बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। वो कहती है कि औरत को निस्फ हिस्सा देना इसके हक की तलफी के मुतरादिफ है। इस्लामी कानून विरासत का अमूमी असूल मर्द का हिस्सा दुगना। इस्लामी कानून विरासत में मुंतकली का तरीका अलिफ वालिदैन से औलाद की तरफ, उसूल से फरोग की तरफ, बे औलाद से वालिदैन की तरफ, फरोग से उसूल की तरफ। अमूमी तौर पर विरासत का इंतकाल वालिदैन से औलाद की तरफ ज्यादा होता है, जबकि दूसरी सूरत कम पेश आती है। कुरान मजीद में कानून विरासत का हतमी उसूल सूरह निसा आयत 11 और 176 में वाज़ेह हुक्म दिया गया है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। ये आयत 11 वो है जो हम मतलब पढ़ चुके हैं रुकू के शुरू में, दिखा ये वाली आयत, और 176 जो है वो बिल्कुल लास्ट आयत है जो हम कलाला में मैंने आपको बताया था कि आखिर में वहाँ डिस्कस हुआ। जी जी का उसूल इस्लामी कानून विरासत में अमूमी हुक्म के तौर पर बयान हुआ है। मुफस्सिरीन के नजदीक ये कानून विरासत का हतमी फायदा और कुलिया है, जिसमें किसी मानवी तावील की गुंजाइश नहीं। अच्छा यहाँ तक तो उसूली बातें हो गई हैं कि बस शरीयत में जो है वो जैसे हम कल डिटेल से पढ़ चुके हैं कि मिरास तकसीम होती कैसे है। तो उसमें जो है वो पहले ये है कि या तो ज़ाहिर है पेरेंट्स में से कोई फौत होता है तो औलाद को मिलती है, और या ये कि औलाद में से कोई फौत होगा तो वालिदैन को जो है वो मिलेगी। तो ये तो बेसिक जो है वो इंतकाल की एक सूरत है। तो अब जब सूरत है तो उसमें फिर आगे उसूल क्या अपनाए हैं, तो उसूल स्टार्ट ही यही है कि अब यहाँ पे कोई ऐसा
ना तो कोई करीना है, ना ही कोई सियाको सबाक है, और ना ही कोई ऐसी वजह है कि कोई खास पस मंज़र हो या कोई खास शान नुज़ूल हो, तो तब भी कोई बड़ा इंसान कहता है कि हाँ जी यहाँ उसको खास पस मंज़र के साथ लिंक कर दिया जाए। तो बिल्कुल कतई और जो है उमूमी उसूल है, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगी साथ कि फ़लाँ सूरत में तो लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन है लेकिन फ़लाँ में नहीं है। तो ये चूँकि उमूमी उसूल है, तो यहाँ कोई और वजह नहीं है कि कुरान के किसी उमूमी हुक्म को अपने पास से जो है वो किसी खास सूरत के साथ जो है वो मुख्तस कर दिया जाए। तो इसलिए फेमिनिज्म के जो कहना है वो तो अपना उसूल है, मुसावात मर्द व ज़न वाला। तो अब एक तो चलो ये तो जवाब हो गया कि उमूमी उसूल है। बाकी जो है वो अब ये बात कि मतलब औरतें जो है वो बाद दफ़ा वो संभाल रही हैं और मर्द तो नहीं संभाल रहा, और ये तो इसका क्या जवाब होगा? अगर एक औरत जो है वो घर संभाल रही है, मर्द नहीं संभाल रहा, तो जी वालेकुम सलाम। इसमें असल में मैं तो खुद चूंकि कुछ अर्से से स्टडी कर रही हूँ कॉन्टेक्चुअल अप्रोच की, कि जो कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ते हैं, और जिन खवातीन का ये अप्रोच है कि वहाँ पे क्योंकि वो हालात थे तो ये अहकाम नाज़िल हुए, तो मैं तो भी खुद इस पे रिसर्च के मराहिल में होंगे कॉन्टेक्चुअल अप्रोच में, क्योंकि ज़ाहिर है ये बज़ाहिर तो बहुत वैलिड बात है ना, और अमूमन अपनी हम सोसाइटी को जब देखते हैं तो उसमें तो अब वाक़ईतन ऐसा हो चुका है कि बहुत सारे खानदानों में खवातीन जो है उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, और उन्होंने या उठा ली हैं या हैं उनको उठानी पड़ती हैं। तो उस सूरत में इस पे क्या वो हुक्म होगा? तो मेरा भी मेरे यहाँ में इन प्रोसेस हो रही है। लेकिन इसका मतलब मैम आप जितने स्टडी किए हैं तो, लेकिन ये है कि यहाँ कोई खास कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना इस बात का। या तो चलें ये कहें कि उसमें जो है वो जैसे पहले रुकू में हमने पढ़ा था, तो वहाँ तादुद अज़वाज की जब बात आई थी, तो वहाँ तो चले कह सकते हैं कि चले यतीमों के अहकाम बयान हो रहे हैं, तो फिर यही है कि ग़ज़वा उहद के बाद जो है वो मुख्तलिफ सहाबा शहीद हो चुके थे, तो वहाँ रीज़न की भी एक वजह थी कि जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा शादियों का हुक्म दिया गया। लेकिन यहाँ तो कोई ख़ास वो वजह नहीं है ना। तो एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि ठीक है बिल्कुल आजकल बहुत सी जगह ऐसे हैं, सिर्फ एक जगह नहीं है कि वो एक औरत ही संभाल रही है, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ ये है। तो अच्छा, अब इसको अगर जो है वो डेप्थ में जाए ना, तो अगर आपने जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कुरान के अहकाम को, या ये कि कुरान और हदीस में जो है वो एनालिसिस करने का अगर आपका जो है वो दिन रात का यही काम हो ना, अगर दिन रात का ना भी हो लेकिन ये है कि स्टडी अच्छी खासी हो आपकी, तो इस तरह के जो इश्कालात होते हैं उसके जवाब बजाय से आपने जो है वो किसी खास बुक में अगर ना भी पढ़ा हो, लेकिन क्योंकि आपको ग्रिप होती है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। उसका जवाब ये है कि देखें, मगरिब का नज़रिया जो है, या जो लिबरलिज्म है, या जो फेमिनिज्म है, ये सारे जितने भी थॉट्स हैं इनके बेस जो है वो स्टार्ट में ये है कि ये पहले एक अजीब किस्म का कानून बनाते हैं, और उस कानून के बाद फिर जब उसके ज़ाहिर पे रिएक्शन भी होते हैं, उसके कुछ इम्पैक्ट भी होते हैं, तो जब वो असरात पड़ने शुरू होते हैं ऐसे जो सोसाइटी पे गलत असरात पैदा कर सकते हैं, तो फिर उसके अपने पास से फिर जो है वो उसकी कोई हल तलाश करना शुरू कर देते हैं। पहले इन्होंने ये कहा जी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की जो शरीयत ने कहा है वो ज़बरदस्ती जो है वो मर्द की, जब तो औरत जो है वो आज़ाद है उसको छोड़ें आज़ाद, अपनी मर्जी से कमाए, बाहर जाए, उसको बिल्कुल आज़ाद कर दें ताकि उसको जो है वो मर्द की बिल्कुल किसी किस्म की कोई ज़रूरत ना हो। तो पहले तो उसको ये जो है वो तालीम दी कि बाहर निकलो और कमाओ खूब। जो है वो ध्यान में रखें कि यहाँ मैं इस बात की जो है वो उसका शिकनी नहीं कर रहा कि औरत जो है वो कमाना नहीं चाहिए, वो बाहर नहीं जा सकती, वो बस बिल्कुल घर में घुस जाए, ये मैं बात नहीं कर रहा। मैं इसको जो है वो सिर्फ इसलिए पीछे से लेके आ रहा हूँ कि ये जो गड़बड़ हुई है लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के कानून को उन्होंने जिस तरह से अपनी इंटरप्रिटेशन दी है, उसको जो है वो समझाने के लिए पीछे से ये बात लेके आ रहा हूँ। तो उसको थोड़ा जो है वो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि वो ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, तो पहले उधर चले गए कि हाँ जी वो भी साथ आए, शाना बशाना मुसावात जो है तो लगा वो भी कमाए। अच्छा जी, अब जब वो भी कमाए, मर्द को जो है वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, हाँ जी तुम अपने जो है वो रास्ते चले हो और औरत जो है वो अपने रास्ते चले। अच्छा, अब जब ज़ाहिर है फिर वो कमाएगी तो फिर ज़ाहिर है मर्द भी जो है वो फिर शेयर हो जाएगा। मर्द कहेगा हाँ जी
तू कमा रही है मुझे भी दे, मेरे बच्चों को भी वो लगा, इतना वो कमा रही है तो किस लिए कमा रही है, घर वालों पे लगाओ। अच्छा जी, अब जब वो उससे मर्द भी मुतालबा करेगा तो अब फिर डेफिनेटली फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने उस पर भी डाल दी। जब उस पर भी डाल दी तो अब फिर ज़ाहिर है वो जब कमा रही है और घर संभाल रही है तो फिर ये क्यों होगा, लिहाजा करें मुस्लिम। लिहाजा आप ये करो कि हमने जो अपने पास से एक मुआशरा जो है वो तश्कील दिया है, हमने जो मुआशरे के उसूल बनाए हैं, अब उस पर ज़ाहिर है उसकी वजह से ये असर तो पड़ा है कि सोसाइटी में आपने दोनों जिन्सों को जो है वो उस पर लगा दिए। जब इस पे लगा दिए तो फिर मर्द को अगर ज़ाहिर है ऐसी सूरत में, यानी उन्होंने जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक हाल बताया है उस सूरत में तो बिल्कुल ठीक है जो ये कह रहे हैं कि मर्द को जो है वो दोगुना नहीं मिलना चाहिए। मर्द को जो है वो आप कंडीशन देखें कि अगर तो मर्द कमा रहा है, सब कुछ मर्द कर रहा है तो फिर तो ठीक है, मर्द को जो है वो डबल दे रहे हैं। लेकिन अगर मर्द नहीं कर रहा, औरत कर रही है, तो फिर ये कानून तो फिर ऐसे ही है गोया कि मर्द को हर हराम बना देना, वो बैठ के खाए, वो डबल डबल जो है वो हिस्से ले, और की दिल चीज जो है वो जो है वो औरत उठाए। तो अब इसको पीछे जो बेस बनी है वो ये बनी है, तो उन्होंने पीछे से ये एक मुआशरा तश्कील दिया है। फिर उसके लिए अब कुरान के जो अहकाम हैं उमूमी जो बिल्कुल जो वो क्लियर कट है, वहां फिर उन्होंने गड़बड़ करना शुरू कर दिया। जी अब हिकमत देख लेते हैं जी कि हिकमत क्या है कि डबल क्यों देते हैं जी। नंबर 1, इस्लाम के खानदानी निज़ाम में कस्बे माश की जिम्मेदारी मर्द पर है, इसलिए इसका हिस्सा ज्यादा रखा गया है। ये कोई पेचीदा या गैर मंतकी मसला नहीं बल्कि फितरत के ऐन मुताबिक है। यानी ये वही बात है जो हम कह सकते हैं कि क्योंकि जब माश की जिम्मेदारी वो उठा रहा है तो लिहाजा फिर डबल ही मिलेगा उसको। लेकिन ये एक खास सूरत में है, आगे हम बाकी एक और इश्काल आएगा उसमें फिर और बात क्लियर हो जाएगी जी। नंबर 2, चूंकि मर्द पर ज्यादा माली जिम्मेदारियां हैं और औरत को इनसे आजाद रखा गया है, इसलिए इंसाफ का तकाजा यही था कि मर्द का हिस्सा ज्यादा हो। नंबर 3, औरत को माशी बोझ से सबकदोश रखा गया है, लिहाजा इसका कम हिस्सा रखना जुल्म नहीं बल्कि अदल है जी। दोनों चीजों को कंपेयर करके चले ना तो फिर वजह समझ आ जाएगी कि ये दोगुना क्यों है जी। नंबर 4, मर्द और औरत जिस्मानी साख्त और फितरी जिम्मेदारियों में मुख्तलिफ है, इसलिए दोनों पर यकसा माशी जिम्मेदारियां नहीं डाली जा सकती। ज़ाहिर है जिस्मानी साख्त बायोलॉजिकल भी मुख्तलिफ है और दूसरा ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मुख्तलिफ है। एक औरत जो है वो जिस तरह घरेलू जिंदगी को या बच्चों को तरबियत कर सकती है, मर्द तो नहीं कर सकता। इसीलिए आप जो है वो देख लें जितने भी हमारे किंडर गार्डन है या बच्चों के जो लोग बिल्कुल छोटी उम्र की एज के जो है वो तालीम का या एजुकेशन का सिस्टम है, वहाँ आप नहीं देखेंगे कि कोई मेल है, वहाँ फीमेल ही होती है। फीमेल क्यों होती है? इसलिए कि वो नेचर, वो मरहला ही ऐसा है कि वहाँ बच्चे को एक औरत ही संभाल सकती है या औरत ही इसे तरबियत कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता वहाँ पे। नंबर 5 है, औरत को तरबियत नस्ल और घरेलू फराइज के बाइस फिक्र माँ से आजाद रखा गया है, जबकि मर्द को घर और खानदान की कफालत का जिम्मेदार बनाया गया है। जी आगे। नंबर 6, औरत को विरासत में 2 तरफा हुकूक हासिल होते हैं। नंबर 1, बाप की तरफ से हिस्सा, नंबर 2, ससुराल में शौहर की तरफ से हिस्सा। जी तो अब वो तो डबल तो ऑलरेडी वो तो उधर से ले रही है ना। अगर सिर्फ सही वाला कानून आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये नहीं नजर आ रहा है कि वो दोनों तरफ से ले रही है जी। नंबर 7, इस तरह औरत अमली तौर पर किसी नुकसान में नहीं रहती। अच्छा जी, ये तो एक इश्काल था कि वो कह रहे हैं कि जी मर्द को डबल क्यों मिल रहा है। अच्छा जी, उसके हमने मुख्तलिफ काफी डिटेल से बहस कर ली कि क्यों मिल रहा है। दूसरा इश्काल क्या है? फेमिनिज्म का दूसरा इश्काल ये किया गया है कि औरतों को विरासत से महरूम नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि मुख्तलिफ सूरतों में खवातीन महरूम होती हैं। औरत को विरासत में हिस्सा देने का उसूल, इस्लाम में औरत को विरासत से महरूम नहीं किया जाता, जबकि इश्काल समझ आया? पहले इश्काल क्या है? विरासत से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि किसी सूरत में जो मर्जी हो जाए औरत को जो है वो मिरास में जो है वो हिस्सा देना ही चाहिए हर हाल में। अच्छा जी, अब जवाब
जवाब नंबर 1 ये है कि इस्लाम में औरत को विरासत में हिस्सा देने का उसूल। इस्लाम में औरत को विरासत से महरूम नहीं किया जाता, बल्कि असहाबुल फुरूस यानी वो वरसा जिनके हिस्से कुरान और हदीस में मुकर्रर हैं में औरत की तादाद मर्दों से ज्यादा है, जैसे कि हम माक़बल में बयान कर आए हैं। जी जी, वो पहले बता दी ना उसके जो है वो कहाँ औरत को जो है वो दोनों सूरतों में खानद की तरफ से भी ले रही है, यानी ससुराली रिश्ते से भी ले रही है, और अपने जो वालिद है उसके तरफ से भी ले रही है। तो अब जो है वो ये नहीं है कि उसको महरूम किया जा रहा है, उसको जो है हिस्स की जो तकसीम है उसमें तो हमने पहले ज़करीम उसको हज़ल मुसय्यम बता दी है। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कोई बिल्कुल तयशुदा नहीं है कि हर हाल में उसको कम ही मिलते हैं, मुख्तलिफ सूरतों में उसको ज़्यादा भी मिलते हैं। तो वो आगे देखते हैं जी। नंबर 2, औरत के हिस्से की मुख्तलिफ सूरतें। वो सूरतें जहाँ मर्द और औरत बराबर हिस्सा पाते हैं। अगर वरसा में वालिदैन और औलाद हों तो वालिद और वालदा दोनों को छठा हिस्सा मिलेगा। जी, अब देखें ये बराबर की एक मिसाल है कि वालिद और वालदा जो है वो दोनों ज़ाहिर मर्द और औरत दोनों हैं, और लेकिन ये है कि दोनों को इक्वल हिस्सा मिल रहा है। ये नहीं मिल हो रहा कि वालिद को ज़्यादा है और वालदा को कम है। जी, अगर मैयत कलाला जिसका बाप और बेटा ना हो, जी कलाला यहाँ से सिर्फ बाप और बेटा लिख दिए, लेकिन तफसील इसकी क्या है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जब आयात पढ़ रहे थे। जी, हो तो याफी माँ की तरफ से बहन भाइयों को बराबर हिस्सा मिलेगा। वहीं जो माँ के शरीक बहन भाई हैं उनकी बात हो रही है कि वहाँ जो है वो इक्वल हिस्सा मिलता है, चाहे वो बहन है चाहे वो भाई है। तो ये दो सूरतें वो हैं कि जहाँ मर्द और औरत को बराबर मिल रहा है। कि जो आपको इश्काल है कि नहीं जी हर हाल में डबल ही मिलता है, तो हम तो ये नहीं कहते कि डबल मिलता है, हर हाल में बराबर भी मिलता है। ये वो सूरतें हैं कि जहाँ बराबर मिलते हैं। आगे कुछ सूरतें हैं जहाँ ज्यादा मिलते हैं, वो देखें। जहाँ औरत को मर्द से ज्यादा हिस्सा मिलता है। नंबर 1, अगर वरसा में वालिदा, बीवी, बेटी और हकीकी भाई हो तो तरका 24 हिस्सों में तकसीम होगा। जी, बेटी को 12 हिस्से, वालिदा को 4, बीवी को 3 और हकीकी भाई को 5 हिस्से। नंबर 2 सूरत है कि अगर मैयत औरत हो और वरसा में हकीकी बहन, बेटी और शौहर हो तो तरका 4 हिस्सों में तकसीम होगा। बेटी को 2 हिस्से, हकीकी बहन को 1 हिस्सा और शौहर को 1 हिस्सा। जी देखें, शौहर मर्द है लेकिन फिर भी शौहर को 1 हिस्सा मिल रहा है, लेकिन बेटी जो है वो 2 हिस्से ले रही है। जी, तो अब ये वो सूरतें हैं कि जो आपके सामने डिस्कस होगी कि इश्काल ये था कि जी औरत को महरूम नहीं करना चाहिए। तो हमने कहा भी महरूम कब कर रहे हैं हम? ज़ाहिर हर सूरत की, हर कंडीशन की अपनी अपनी जो है वो कुछ मुतालिबात होते हैं, जो है वो उनको सामने रख के हमने हिस्से तकसीम करने हैं। तो हमने बराबरी वाली भी सूरतें डिस्कस कर ली हैं, और वो सूरतें भी जो उसमें ज़्यादा मिलती हैं। 10 दो सूरतें हैं और मुख्तलिफ सूरतें हैं, कम से कम भी 7-8 सूरतें हैं जहाँ औरत को ज़्यादा मिल रहा होता है। लेकिन चूँकि वो एक जो है वो एक ये कह लें कि टैग लग चुका है, या ये है कि मेराज जो है वो स्टार्ट होती है, तो फिर होते ही यही है कि लिज़करी बस। तो इसलिए वो एक चीज़ को पकड़ा हुआ है और बस एतराज़ पे एतराज़, एतराज़ पे एतराज़। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।